بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدھیہ پردیش کے رتلام میں دینی تعلیم کے معاملے میں مدرسہ جامعہ قمر المعروف نے بلندی حاصل کی ہے۔ یہاں تعلیم یافتہ محمد احسام نے محض 7 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے۔ دراصل محمد احسام اتر پردیش کے بستی کا نواسی ہے، جس کی عمر محض 10 سال ہی ہے۔ یہ کارنامہ استادوں کی محنت اور تعلیم یافتہ کی ذہنیت کا ملا جلا سنگم ہے۔ جامعہ قمر المعارف اشوک نگر رتلام میں ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر یہاں کے طالب علم میں ایک 10 سال کے ایک بچے نے یہاں مخاطب ہوں گے اور یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیا کیا طریقے سے انہوں نے کلام پاک کو حفظ کیا ہے۔ محمد احسام بیٹے بتائیے گا، آپ حافظ ہو گئے، اب تو آپ کے آگے حافظ لگے گا، تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ جی ایسا آپ نے جب آپ کو پڑھاتے تھے اس سمے کیسا لگتا تھا آپ کو؟ بہت اچھا لگتا تھا، پڑھنے میں مزہ آتا تھا، جی یاد جب ہو جاتا تھا پھر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ایسا کوئی ایسا دن آیا آپ کا جب آپ کو لگا کہ مجھے آج پڑھائی میں بہت زیادہ پڑھنا پڑ رہا ہے، اس دن آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہو، یا کم پڑھائی کی آپ نے اس دن آپ کو زیادہ اچھا لگا ہو، کیسا لگا آپ کو؟ ایسا میں کبھی نہیں لگا کہ کبھی زیادہ پڑھائی کی تو مزہ آتا تھا، یاد ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں کتنا حفظ کر لیتے تھے آپ؟ لگ بھگ 2 صف آگے چلتے چلتے دھیرے دھیرے 5 صفحے۔ ایک صفحہ کتنا آیت کا ہوتا ہے؟ 15 آیت کا، 15 ہے لائن کا، مطلب 1 2 یہ کیا 2 رکوع، ایک رکوع۔ آج 7 مہینے میں پورا کلام پاک کر دیا آپ نے، چھوٹی سی عمر ہے۔ بچے آج کے دور میں موبائل سے کھیلتے اس عمر میں آپ نے کلام پاک حفظ کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے نا؟ کیا کہو گے باقی بچوں کو جو آج کے ٹائم میں موبائل کی دنیا میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں؟ آپ نے کلام پاک حفظ کر لیا ہے، دین تعلیم حاصل کر لی، نہیں کھاؤں وہ بھی قرآن کے پیچھے محنت کریں اور دل لگائیں، انشاءاللہ وہ بھی جلتا ہے۔ آپ کے استاد نے کبھی کوئی آپ کو ایسی بات بتائی، کسی درمیان کوئی ایسا بات لگی آپ کو کہ آپ کو لگا کہ نہیں مجھے اوپر اچھا پڑھنا چاہیے، لگا ایسا؟ استاد نے کبھی ڈانٹا تھا؟ نہیں ایسے ڈاٹا تو نہیں ڈاٹا، سمجھاتے تھے۔ آپ کو کبھی استاد نے بتایا تھا کہ آپ بہت جلدی کلام پاک حفظ کر لو گے، ٹائم لگتا ہے 2 2 3 3 4 4 سال ہو جاتے ہیں حفظ کرنے میں؟ جی استاد صاحب جب گھر بات کرتے تھے تو کہتے تھے جی کیا کہتے تھے؟ کہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، تو تم نے بہت جلدی کر لی ہے۔ تو اس کی کامیابی کا شریک کس کو دیتے ہیں؟ استاد کو، والدین کو، یہاں کے مرکز کے جو جتنے بھی اور آپ کے استاد رہے ان کو، سبھی کو، خاص طور پہ استاد آپ کے مین جو آپ کے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ایک صاحب، ان کا بہت بڑا یوگدان ہے آپ کو۔ اب آگے کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ کہاں تک پڑھائی کرتے ہو؟ مفتی اعظم بنو گے؟ اچھا، وہی سے آپ کی مفتی اعظم بن گئے، ماشاء اللہ۔ کوئی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ چلیے، یہ آپ کے حافظ قرآن محض
7 महीने में 10 साल की उम्र में जिन्होंने किया था मोहम्मद एहसान थे, जो अशोक नगर के मदरसे की कामयाबी का एक झंडा गड़ा इन्होंने, और इनके पीछे इनके उस्ताद और इसको उस्तादों के साथ में और इनके जो बहन जो मरकज़ की और भी लोग हैं, अतीक साहब वगैरह, इनका बहुत अहम योगदान इसके अंदर है। और इसी कड़ी में हम इनके जो उस्ताद होते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि उससे उन्होंने किस तरह से इनको इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों को तालीम देने में किन किन चीज़ों को फेस किया है। चलो, आपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाया 7 महीने महज, तो क्या आपने सबसे पहले देखा था कि आपको लगा कि 7 महीने में हिफ्ज़ कुरान? शुरू में मैंने 2 सब लिया, फिर जैसे जैसे बढ़ने के 2.5 साल 3 सब आखिर में 25 सब लेके मैंने आखिर के 2 महीने में मैंने 15 पारा कराए। माशाअल्लाह बच्चे बहुत आसानी से कर लिया। कुछ और ऐसा लगा आपको ये बच्चे के जल्दी कर सकता था या कुछ और लेट होता है इसमें? नहीं, बच्चे का माशाअल्लाह शौक भी बहुत था, दिमाग भी ऐसे ही है माशाअल्लाह, बहुत जल्दी आप कर लेता था। स्पेशली आपने इसको फोकस किया था या बाकी बच्चों के साथ में ये भी देता था? नहीं, बाकी बच्चों का सही चल लेते, बच्चे चल लेते, और बच्चे से पढ़ के गए जो बहुत जल्दी लिखे, बहुत जल्दी कर लिया। जी। और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो 1.5 साल 2 साल में किए हैं, 1.5 साल में भी किए बच्चे। महज 7 महीने में इसने किया है। ये पहला बच्चा ऐसा है जो मेरे पास जल्दी किया। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। और क्या ख्वाहिश आपकी 7 महीने में कर दिया, वैसे कोई और आगे और कुछ ख्वाहिश ऐसी कि 5 महीने 4 महीने में से गर्म बात खुद से कर दी जाए? जी, कोई बच्चा ऐसा आ जाए इंशाअल्लाह, कोशिश करूँगा। ऐसे आपके सामने इतने बच्चे आते होंगे, इस बच्चे में क्या खासियत देखी थी आपने कि इसको आपने मोटिवेट किया इतना कि आपको बन सकता है, ये जल्दी कर सकता है? जी, घर का बच्चा हमारे पास था, उनको अपने हिसाब से अपने उससे कंट्रोल में उनको जुमा भी पढ़ने बैठाते थे और निगरानी भी करते थे माशाअल्लाह। जुमा पर टीचर को ये 7 साल या 8 साल सबक सुना देते थे। एक्स्ट्रा मेहनत आपने काफ़ी की। जुमा के दिन भी बताते थे, उससे डबल सबक हो जाता था, 8 साल 7 साल। आगे कोई पैगाम आप और मदरसे वाले लोगों को क्या पैगाम दोगे? ऐसी मेहनत करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जब तक हो सके कोशिश करना, सभी बच्चों को आप कश्मीर से आप मदरसे के बारे में बताइएगा, क्या रहा आपका? ये मदरसा जो हमारा है ये जामिया कमरुल मारिफ लगभग पिछले 15 सालों से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, फलाही और मिली खिदमत अंजाम दे रहा है। यहाँ बच्चे आकर अपनी दीनी और इस्लामी बातें सीखते हैं, समझते हैं, ख़ास तौर से कुरान करीम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसकी तफसीर है, हदीस है, उससे मुताल्लिक़ सारे फ़नून है, उलूम हैं, वो सारे स्टडी करते हैं। और लगभग पिछले 15 सालों के अंदर 150 बच्चों ने यहाँ इल्म दीन हासिल किया है, हाफिज़ बने हैं, और यहाँ से वो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग सूबों में, शहरों में, अलग अलग सिटियों में जाकर दीनी खिदमत हैं अंजाम दे रहे हैं। इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, टीचर्स हैं स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर, तो इस टाइप की खिदमत यहाँ अंजाम दे रहे हैं। और एक ख़ास और नुमाया बात यह है कि इस छोटे से मदरसे से एक वो कारनामा भी अंजाम पाया है जिसके लिए बड़े बड़े मदारिस हिंदुस्तान में तरसते हैं। और वो कारनामा ये है कि पिछले 5-6 सालों पहले एक तालिब इल्म हिंदुस्तान से आल वर्ल्ड मुसाबके में सऊदी अरब के जद्दा शहर के अंदर गया और पूरी दुनिया के बच्चे जहां हर मुल्क से आए हुए थे, हर शहर से आए हुए थे, उनके दरमियान उसने तीसरा नंबर, तीसरी पोजीशन हासिल की और उसे वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनाम से नवाजा है। तो ये ख़ास तौर से कारनामा भी इस आपके शहर के जामिया कमरुल मारिफ अशोक नगर रतलाम के हिस्से में आई है। और ये बहुत बड़ा कारनामा था वैसे सोचने के लिए कि पूरे हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, लेकिन उन लाखों मदरसों में से ख़ास तौर से इस मदरसे को ये अहमियत हासिल हुई कि यहाँ का बच्चा फ़ॉरेन कंट्री के अंदर सऊदी अरब जाकर, जद्दा जाकर, दीगर मदारिस के बच्चों की कंपटीशन के अंदर तीसरा नंबर लेकर आता है। ये हमारे लिए एक एजाज़ी बात है। इस साल क्या आपकी कामयाबी रही इस बच्चे में? आप इस साल हमारी कामयाबी रही कि लगभग हमने 10 के करीब बच्चों को हिफ्ज़ करवाया है, जिसमें से 5 हमारे पास फ़िलहाल मौजूद हैं और उसमें से एक वो बच्चा भी हमारे पास में ज़ेर तालीम है, अभी पढ़ रहा है, जिसने एक करीब मुद्दत, कम मुद्दत के अंदर 10 साल की उम्र में उसने हिफ्ज़ किया है।
10 साल की उम्र में बच्चा स्कूल में दूसरी क्लास में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि उसने अपनी ख़ास किताब को इस बच्चे के सीने के अंदर महज 10 साल के अंदर ही पूरा हिफ्ज़ करवा दिया है। इस बच्चे का नाम मोहम्मद हिशाम है और 7 महीने के अंदर इसने हिफ्ज़ किया। उम्र 10 साल है, लेकिन हिफ्ज़ करने का जो दौरानिया है, यानी हिफ्ज़ करने की का जो डिस्टेंस है वो पूरा 7 महीने का है। 7 महीने के अंदर वो किताब जिसके 30 पारे हैं, हर पारे के अंदर 20 पेज हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना बनेगा। ये इसने इस कम मुद्दत के अंदर अल्लाह के फजल करम से हिफ्ज़ करके बनाया है, बताया है। और ये बहुत कम लोगों को ये तौफीक होती है, ये सआदत मिलती है, जो इतनी कम मुद्दत के अंदर पूरे कुरान करीम को अपने सीने में समेट लेते हैं, हिफ्ज़ कर लेते हैं। और ये सआदत भी अल्लाह के फजल करम से इस जामिया के हिस्से में आई है। थैंक यू।